Alright, hi, hello everyone. This is Ritika, your chemistry educator, and today I have with me a very important session which many students were actually requesting, that is the balancing equation with partial equation method. Right, so if I talk about balancing the equation, there are various methods that we can have, for example, hit and trial method, algebraic method, or the partial equation method, right? And if I talk about the easiest one, which many of you might think, which is the hit and trial method. The problem with that method, students, is that particular method, it is not very much convenient for इक्वेशंस विथ लार्जर नंबर्स, है ना. जब हमारे पास कुछ ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 15H2O है या फिर 18H2O है, राइट. तो इन दैट केस क्या हो जाता है ना, हमारे लिए हिट एंड ट्रायल बहुत ही टीडियस हो जाता है, बिकॉज कितनी बार हमें यू हैव टू क्रॉस दैट इक्वेशन एंड you have to go for the another one. तो इसीलिए there is one more method which some of you might think कि हाँ हो सकता है थोड़ा difficult है या फिर नहीं समझ आ रहा है, but actually it is very easy, which is the balancing equation by partial equation method. Okay, and I hope that आज के session के बाद you might find that equation that method easy, and you are able to solve the equations by that method. So knowing a bit about myself, I am Ritika. I have completed my engineering in electronics and communication, and I'm your chemistry educator at Unacademy. Also students, you can join us on Telegram. So if you need any help in your homework, or if you require the notes, I'm sorry, you can join us on our Telegram channel. Now this is the link of my personal channel, wherein you can get the links of the classes, wherein you can get the notes, etc. And this is the official channel of Unacademy. Herein you can get all the updates about Unacademy, what all tests are going on, what is actually going on, what all offers are going on here at Unacademy. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, and the links to these are provided in your description box. ओके तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पार्शियल इक्वेशन मेथड होता क्या है. And then we will be moving on to the examples. Okay, so this particular equation method, it is understandable only through the examples, and हम लोग example के through ही चीजों को समझेंगे and सीखेंगे. But if you are having any doubt at any point of time, you can please let me know. ओके तो पार्शियल इक्वेशन जो है उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, राइट, विच वी हैव टू फॉलो. तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि हमें इक्वेशन को क्या करना है, वी जस्ट हैव टू ब्रेक द इक्वेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी, इट गिव्स d प्लस e प्लस मे बी f. ओके अभी इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से ना ब्रेक कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी सी दे रहा है, d दे रहा है, c इज स्प्लिटिंग एंड गिविंग e एंड f. ओके तो ये अलग अलग टाइप की स्प्लिटिंग वी कैन सी और वी कैन एक्सपीरियंस ओवर हियर, कि बेसिकली हमारी जो बड़ी सारी इक्वेशन है ना उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक करना है. ओके नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर विल बी बैलेंस द इक्वेशंस. ओके तो जो भी हमारी ब्रोकन इक्वेशंस है हमारे पास, जिसे हमने शॉर्ट पार्ट्स में या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अभी उसको बैलेंस करने का टाइम है. ओके एंड बिकॉज द इक्वेशंस हैव टर्न स्मॉलर, तो हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. इवन हिट एंड ट्रायल वर्क्स वेरी फाइन. एंड द थर्ड इज एड द इक्वेशंस. ओके तो अभी जिन इक्वेशन को ब्रेक करके हम लोगों ने बैलेंस कर दिया है, उन्हें सभी को साथ में जोड़ दो एंड वी गेट आवर आंसर. ओके एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर ओवर हियर. यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट्स, ओके हियर वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमें काम आता है. वी आर यूजिंग नेसेंट ऑक्सीजन.
ओके फॉर बैलेंसिंग. अभी नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? इट इज द ऑक्सीजन इन एलिमेंटल फॉर्म. ओके, तो एलिमेंट के फॉर्म में जो हमारा ऑक्सीजन होता है इट इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, एंड हाउ डू वी write it? It is always written in the square brackets. Okay, we can never write it this way. हमें हमेशा elemental oxygen, that is nascent oxygen को we have to close it in the square brackets. Okay, तो I hope यहाँ तक के basic rules you might be clear with it. But if still there is some confusion, तो जैसे जैसे हम लोग questions करेंगे you will get to know the things very well. चलिए, लेट अस स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द डे. और बहुत ही सिंपल है. वी विल बी मूविंग फ्रॉम सिंपल टू अ बिट डिफिकल्ट वंस. ओके, तो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज कार्बन प्लस H2SO4. इट गिव्स H2O प्लस CO2 प्लस SO2. तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि इस इक्वेशन को हमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना. अभी स्मॉल पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो ये तो हम लोग हमारा बेसिक जो है सेंस यूज करेंगे. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, है ना, व्हाट कैन कार्बन प्रोवाइड फ्रॉम ऑल दीज प्रोडक्ट्स? H2O ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है बिकॉज हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चाहिए हमें, दोनों ही नहीं है. CO2 यस. वाई CO2? क्योंकि कार्बन तो मिल जाएगा और ऑक्सीजन जो है हमें कैसे मिलेगा? वी विल बी गेटिंग दिस ऑक्सीजन बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन विच आई टोल्ड यू राइट नाउ. ओके, और SO2 ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गेट इट. तो फ्रॉम कार्बन वी कैन ओनली गेट CO2. तो लेट अस ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई कार्बन एंड CO2. ओके, अभी एज आई टोल्ड यू ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? नेसेंट ऑक्सीजन से. ओके, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो जस्ट ऐड 2 एलिमेंटल ऑक्सीजन. ओके, यू कैन नॉट डायरेक्टली गिव O2. ओके, वो पॉसिबल नहीं है. हमेशा वी हैव टू गो फॉर नेसेंट ऑक्सीजन ओनली. इसीलिए बिकॉज वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पर वी आर गोइंग फॉर 2. और ये हो गई हमारी equation number first. So I hope that this thing is very much clear to you. Okay, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. And the second equation जो हमें मिली है which is H2SO4. अभी H2SO4 हमें क्या प्रोवाइड करेगा? It is going to provide us with H2O and it is going to provide us with SO2. Okay, अभी इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं. So the equation second is H2SO4. It is giving us H2O plus SO2. Okay, अब इसे बैलेंस करते हैं. देखिए, हाइड्रोजन, यहाँ पर we are having 1 hydrogen and here also 1 hydrogen, that is balanced. Sulfur, it's 1 sulfur and 1 sulfur, again it is balanced. यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 4, राइट, 4 ऑक्सीजन है. एंड यहाँ पर वी आर हैविंग 1 and 2 3 ऑक्सीजन है. सो ऑफ कोर्स वी नीड 1 मोर ऑक्सीजन ओवर हियर. तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल जस्ट ऐड 1 elemental oxygen over here. Okay, so this will be our balanced equation. अभी हमें क्या करना है? So this is our equation number 2. So I hope that up till here the things are very much clear to you. There is no confusion. I'm sorry. अब हमें क्या करना है? We just have to add the equation number 1 which we got here and equation number 2 which is this one. Okay, let us try to add it. So here it is carbon plus 2 nascent oxygen, it gives carbon dioxide. So we can write carbon plus 2 nascent oxygen, it is giving carbon dioxide. And second equation is H2SO4, it is giving H2O plus SO2 plus nascent oxygen.
नाउ नोटिस वन थिंग ओवर हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन है इट इज 2 और यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 है। तो इस इक्वेशन को वी हैव टू इन बोथ दीज इक्वेशन वी जस्ट हैव टू इक्वल द नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके जस्ट अ सेकेंड, yeah, so we will multiply equation number 2 by 2. okay, अभी मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, लेट अस सी। फर्स्ट वाली इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी, कार्बन प्लस 2 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन, इट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन 2 में क्या होगा, सी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2H2SO4 हो गया, सो इट विल बी, जस्ट अ सेकेंड, H2SO4, it is giving, what is it giving, it is giving H2O plus SO2 plus nascent oxygen, और क्योंकि इसे 2 से मल्टीप्लाई किया so it will be somewhat like this. okay, so this is our second equation. okay, now what we can see, दोनों साइड जो है हमारा nascent oxygen equal है, yeah, you can see it here and here. ये हर इक्वेशन में you have to make it a point to check it. नेसेंट ऑक्सीजन एक तो दोनों अलग अलग साइड होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज ऑन रिएक्टेंट साइड एंड हियर इट इज ऑन दी प्रोडक्ट साइड। ओके, तो ये चीज आपको नोट करनी है। एंड नेक्स्ट इज नेसेंट ऑक्सीजन का जो नंबर है दैट शुड बी इक्वल। ओके, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन कट इट, कैंसिल हो गया ये। अभी इक्वेशन देखिए, वी कैन जस्ट एड इट सिंपली एंड व्हाट डू वी गेट, वी गेट carbon plus 2H2SO4, it gives, what is it giving, just add all the things, 2H2O plus 2SO2 plus CO2, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अभी लेट अस सी इफ इट इज रियली बैलेंस्ड और नॉट। कार्बन कितना है, 1 and 1 बैलेंस्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 into 2 4, और यहाँ पर भी वी आर हैविंग 2 into 2 4, तो दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन की, वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन ओवर हियर, और यहाँ कितना है 1, ओके जस्ट अ मिनट, हियर वी आर हैविंग 8 ऑक्सीजन, सो 2 into 4 8, और यहाँ पर कितना है 2 into 2 4 plus 2 8, ओके, सो 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन। और लास्ट हमारे पास क्या बचा है, वी हैव गॉट सल्फर, तो सल्फर यहाँ पर हमारे पास 1 सल्फर है एंड हियर वी आर हैविंग, सॉरी 2 सल्फर है, दिस वन, एंड हियर आल्सो वी आर हैविंग 2 सल्फर। सो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो दिस इज अ प्रिटी इजी मेथड, लेकिन इसमें बस ये है कि एक बार आपको अप्रोच पता पड़ गई देन यू कैन डू इट वेरी वेल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Taking these questions a bit forward, let's move on to our second question. So second question is H2S plus HNO3, it is giving NO plus H2O plus S. ओके, अब यहां पर देखिए वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस इक्वेशन। ओके, अभी डिवाइड कैसे करें ये देखो। द फर्स्ट इक्वेशन H2S, ओके, एंड सॉरी फर्स्ट कंपाउंड दैट इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। अब हमें ये देखना है कि इसे हम किस तरह से ब्रेक करें। ओके, तो पहले बात करेंगे हम लोग HNO3, तो नाइट्रिक एसिड किस में ब्रेक होगा, नाइट्रिक एसिड ब्रेक होगा NO में हो सकता है ना, एंड हाइड्रोजन भी है तो इट कैन गिव हाइड्रोजन ऑल्सो। ओके, तो यहां तक आई होप द थिंग्स आर क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ओके, सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज HNO3, it is giving NO plus H2O. अभी लेट्स
ट्राई टू बैलेंस. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, तो वी विल जस्ट ऐड 2 ओवर हियर. ओके, अभी नाइट्रोजन कितना हो गया 2, सो अगेन वी विल ऐड 2 ओवर हियर. ओके, और ऑक्सीजन कितना है, वी आर हैविंग 2 into 3 6 ऑक्सीजन. हमारे पास यहाँ पर कितना है 2 plus 1 है ना, तो 3 ऑक्सीजन है एंड 3 वी नीड मोर, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया. ओके, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अभी सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, H2S से व्हाट आर वी गेटिंग, H2S से सी सल्फर मिलेगा एंड वी कैन ऑल्सो गेट वाटर. ओके, तो ये चीज भी यू कैन नोट स्टूडेंट्स की ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट जो एक बार हमने यूज कर लिया वी कैन नॉट यूज इट फ्रॉम दी प्रोडक्ट साइड. ओके, सो द सेकेंड इक्वेशन विल लुक लाइक H2S, it is giving, just a second. Okay, so H2S is giving H2O plus S. अभी देखो यहाँ ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सिर्फ एक ऑक्सीजन की कमी है. What we can do, we can add one elemental oxygen over here on the reactant side. ये हो गया हमारा H2S plus O. अभी देखो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, तो what we have to do, we have to multiply this equation by 3. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो हमारे पास आ गया 3H2S प्लस 3 एलिमेंटल ऑक्सीजन, इट इज गिविंग अस 3H2O प्लस 3S. ओके, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अभी लेट अस ऐड बोथ दीज इक्वेशंस. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, इट इज 2HNO3, इट इज गिविंग 2NO plus 2, sorry it was I guess H2O, right, H2O plus 3 oxygen. And second equation क्या आई है, 3H2S plus 3 nascent oxygen, it is giving us H2O plus S. And it was 3 I guess, yes, so यहाँ पर भी it was 3 and 3. now let us try to add. तो यहाँ 3 nascent oxygen से 3 nascent oxygen cancel हो गया और इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, it is 2HNO3 plus 3H2S, it is giving 4H2O. see, 1 from here and 1 from here, तो इसे प्लस कर दो, 4H2O plus 2NO plus 3S. अभी देखते हैं if it is equal or not. तो यहाँ देखो, we are having 2 hydrogen here and 6 here, 3 into 2 6, तो टोटल 8 हाइड्रोजन है हमारे पास, और यहाँ 4 into 2 8 हाइड्रोजन हो गया. ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 into 3 6, तो यहाँ पर कितना है 4 and 2 into 1 6. ओके, उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो 2 नाइट्रोजन है एंड हियर वी आर हैविंग 2 नाइट्रोजन, और लास्ट बचता है सल्फर, तो इट इज 3 सल्फर एंड ऑफ कोर्स हियर आल्सो वी आर हैविंग 3 सल्फर. ओके, तो आई होप दैट up till here the things are very much clear and very much easy it is. Okay, so if there is any confusion please let me know. Okay, next बात करेंगे हम लोग next equation की. Okay, just a second. Okay, let's take a very simple example now. Potassium iodide and hydrogen peroxide. So it gives potassium hydroxide and iodine. Okay, अब यहाँ पर देखो students, if I talk about H2O, है ना, तो ये यहाँ पर ना तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है, ना ही इट कैन प्रोवाइड अस विद आयोडीन. ओके, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, हियर यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट दैट H2O जो है, H2O2 जो है किसमें ब्रेक हो सकता है, सो इट कैन ब्रेक इन H2O प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, राइट. सो इसमें ये ब्रेक हो सकता है. ओके, एंड
नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इट इज पोटेशियम आयोडाइड. अभी हाइड्रोक्साइड के लिए वी ऑफ कोर्स नीड H2O. ओके, तो व्हाट इज इट गिविंग, इट इज गिविंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन. ओके, अब बात करते हैं बैलेंसिंग की. तो इट इज Ki, दैट इज 1 आयोडीन इज हियर, तो वी विल जस्ट ऐड इट. ओके, यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, अब देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1 है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड 1 नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, एंड देन सिंपली एड इट. तो यहाँ पर 1 ही है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इजीली. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Ki प्लस H2O2, it gives 2KOH plus I2. Sorry, it's I2. Okay, so this is how the equation will be. Okay, तो we just have to have this idea कि कौन सा element हम लोग कब ऐड करेंगे, किस तरह से ऐड करेंगे, and then we are good to go. So this is the thing that you have to be very careful about or aware about, that what are the elements that we should be adding. Chalo, moving on to next question. Okay, next question है हमारा KMnO4. Okay, so this is going to be a little bit big equation, as we are moving from easier to a bit difficult questions. तो अब हम लोग ना थोड़ा सा equations को higher level पर लेंगे. Okay, just give me 1 second. Okay, just a minute, students. So if I talk about this particular equation, how this equation will be going, KMnO4 plus H2SO4 plus FeSO4, and what is it giving? It is giving us K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus H2. So of course this is a big equation. Talking about 9th grade में थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है कि आपको इस टाइप के जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे in your exams. Okay, but still if we are doing this process, then we must be knowing how to solve these. Okay, अब देखो यहाँ पर जो हमारी दोनों इक्वेशंस है वो किस तरह से बन रही है और मे बी हाउ टू सॉल्व इट. तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट KMnO4 एंड H2SO4, जस्ट हाईलाइट इट. ये मिलकर हमें क्या बता सकते हैं, what they can give us, they can give us K2SO4. okay, MnSO4 भी मिल सकता है हमें. okay, and of course we can get H2O also from here. okay, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. और नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी हमारी, FeSO4 जो है हमें दे सकता है Fe2SO4 होल थ्राइस. तो ये हमारी इक्वेशन का we can break this equation. okay, so in this particular equation there are many more important things that you should also be knowing, जो कि हम देखेंगे as we proceed with the solutions. okay, तो first equation हमारी क्या है, it is H2SO4 plus KMnO4, it is giving K2SO4 plus MnSO4 plus H2. ओके, तो देखिए ट्राई करते हैं बैलेंस करने का. हाइड्रोजन वी आर हैविंग 2 and 2, तो अभी तक तो चीजें सही है.
We are having 2 only, right? Yes. Okay. अब बात करते हैं हम लोग पोटेशियम की. So it is K2 over here और यहाँ हमारे पास कितना है? We are having only 1. तो just add 2 over here. Okay. Next हम लोग बात करेंगे सल्फर की. Okay, सल्फर कितना है हमारे पास? We are having 1 and 2 here. Okay, और हमारे पास यहाँ पर सल्फर कितना है? We are having only 1 सल्फर. एंड बात करेंगे मैंगनीज की. सो हियर वी आर हैविंग 2 मैंगनीज और यहाँ 1 है तो इसको पहले इजीली बैलेंस कर दो. इट इज 2. अब सल्फर देखो डिस्टर्ब हो गया अगेन. तो सल्फर कितना है हमारे पास? 1, 2 and 3 और यहाँ पर हमारे पास 1 है तो एड 3 ओवर हियर. ओके, नाउ हाइड्रोजन की बात करें, पहले बैलेंस था पर अब कितना है? 3 into 2 6. तो अगेन हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा. दैट इज 3. Okay, अब लास्ट में what are we going to do? We are going to count the number of oxygen atoms. Okay, last में क्यों count करेंगे? Why? Because this is balanced by using the nascent oxygen और उसको हम लोग लास्ट में ही लेंगे. अगर पहले ले लेते तो बाकी सारी की वजह से फिर से वो काउंट जो है डिस्टर्ब हो जाता. I hope that up till here you might have got everything. Okay, yes, of course this is going to be a little bit different, okay, or difficult as you say. चलो अभी ऑक्सीजन काउंट करते हैं. कितना ऑक्सीजन है हमारे पास? सो यहाँ देखो 3 into 4, then 2 into 4, then 4 and 2 into 4, सॉरी ये तो दूसरा साइड हो गया, and 3 into 1. तो हमारे पास यहाँ पर जो है कितना है? 3 into 4 12 plus 2 into 4 8. ओके, और यहाँ पर कितना है हमारे पास? 4 plus 2 into 4 8 plus 3. ओके, तो यहाँ हमारे पास 20 है, यहाँ हमारे पास 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि 5 ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट की साइड पर कम है. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ऐड 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड. ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर. सो आई होप टिल इक्वेशन नंबर 1 you guys do not have any problem. If you have, you can please let me know. चलो यहाँ तक हो गया क्लियर. नेक्स्ट आती है बात सेकेंड इक्वेशन की, दैट इज FeSO4. It is giving us Fe2SO4 whole thrice. अब देखो यहां पर जो है FeSO4 जो है it is or it won't be able to balance the sulfur. ओके, हम लोग यहाँ पर सल्फर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? We can add H2SO4 here. Okay, so how is our equation going to be? Let's try to see. It is going to be FeSO4 plus H2SO4. It is giving us what? It is giving us FeSO4 whole thrice plus H2O. This is going to be our equation. अब इसको फिर से उसी तरह से बैलेंस करेंगे तो कैसे हो जाएगा? Fe हमारे पास कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है. तो क्या करना है? Oh, I'm sorry, it is Fe2SO4 whole thrice. यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो गया. ओके, नेक्स्ट इज H2SO4. तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है. ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो कितना है? 2 into 4 8 plus 9 10 11 12 और यहाँ कितना है? 4 into 3 12 plus 1 13. ओके, तो अभी क्या करना है? वी जस्ट नीड टू ऐड 1 नेसेंट ऑक्सीजन हियर और ये हो गई हमारी इक्वेशन. 2FeSO4 plus H2SO4 plus nascent oxygen and it is giving Fe2SO4 whole thrice plus H2O. लेकिन बिकॉज पिछली इक्वेशन में हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन है तो बैलेंस करने के लिए what do we have to do? We have to multiply this whole equation by 5.
ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, वी आर गेटिंग 10 FeSO4 plus 5H2SO4 plus 5 nascent oxygen. They are giving us 5Fe2SO4 whole thrice plus 5H2O. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड. और इक्वेशन फर्स्ट को आई जस्ट राइट इट इन डिफरेंट इंक. इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इट इज दिस वन. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. सो विल जस्ट राइट इट ओवर हियर. तो हम लोग चलो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. थ्री H2SO4 plus 2KMnO4, it is giving K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5 nascent oxygen. ओके, अभी देखिए 1 nascent oxygen तो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड, 1 है प्रोडक्ट साइड, कैंसिल इट. ओके, और अब हम इन सबको ऐड कर देंगे. नाउ आई एम नॉट हैविंग प्लेस ओवर हियर, सो आई विल जस्ट रिमूव इट. and I'll write it over here. तो हमारे पास क्या मिल रहा है, we are getting 2KMnO4 plus, अभी देखो H2SO4 कितना मिल रहा है, 5 plus 3, तो that is equal to 8 H2SO4. और FeSO4 एक ही साइड है which is 10 FeSO4. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. और यहाँ प्रोडक्ट साइड में K2SO4 एक ही जगह है, so it is K2SO4 plus MnSO4 is 2 plus FeSO4 whole thrice Fe2SO4, तो ये हमारे पास कितना है 5. एंड लास्ट हमारे पास कितना है, वाटर कितना है 5 H2. नाउ लेट अस try to see if our equation is correct or not. तो of course at last हमें एक बार चेक तो करना ही है कि हमारी जो सारी equations बनी है या whatever elements we are having are they balanced or not. तो चेक करते हैं. चलिए, पोटेशियम हमारे पास कितना है 2 प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पर, दोनों साइड पर हमारे पास 2 पोटेशियम है. मैंगनीज अगेन 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस्ड. ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में देखेंगे, है ना. सल्फर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, नहीं 1 ही है सॉरी, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है. ओके, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, वी आर हैविंग 3 and 3 to 5 15, then 16 17 and 18 from here. ओके, तो सल्फर भी हमारे पास बैलेंस हो गया. अब बात आती है हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 8 into 2 16. I guess only here we are having hydrogen. और कहीं भी है क्या? No. Okay, just a minute, students. I guess something is wrong here. Okay, एक minute. Yeah, it is 5H2O. And इधर H2O भी था, I guess. 1 minute. हाँ, पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इट इज 2 एंड ओवर हियर वी आर हैविंग 2. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैंगनीज की, तो हमारे पास कितना हो रहा है, इट इज 2 अगेन, एंड यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग 2 मैंगनीज. सल्फर की बात करेंगे, सल्फर इट इज 8 into 1, then we are having 10 sulfur from here. हाँ ये रहा, चलो हो गया क्लियर. तो यहाँ पर सल्फर कितना हो गया हमारे पास, 18 सल्फर है ना. तो यहाँ पर वी आर हैविंग 3 into 5, तो कितना हुआ 50, एंड 16 17 यहां से एंड 18. ओके, तो यहां तक जो है हमारे सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड है. ओके, अब बात आती है हमारी ऑक्सीजन की. 1 second, I'll just remove it.
Okay, and one more thing students, here it was not 5, it was 8H2. So इसकी वजह से confusion हो रहा था. I have just removed it, but we actually got 8H2. Okay, अभी हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? I'll just use a different thing. 8 into 2 16, और यहाँ पर हमारे पास 8 into 2 again 16, और कहीं हाइड्रोजन है नहीं. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 into 2 8, then 8 into 4 32, and 10 into 4 40. तो हमारे पास कितना है? 40 प्लस 8 4 32, और 2 into 4 8. ओके, तो ये हमारे पास हो गया 4 5 6 7 8. 8 ही ऑक्सीजन है. अभी यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन हमारे पास इक्वल हो रहा है या नहीं. इट इज 4 प्लस 2 into 4 8 यहाँ पर, देन 4 into 3 हमारे पास कितना है? 12. ओके, एंड वापस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 60, एंड देन 8. ये रहा. ओके, तो 8 और 8 16 17 18 19 20 एंड 80. तो 80 ऑक्सीजन इधर भी है, एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आल्सो वी आर हैविंग 80 ऑक्सीजन, व्हिच मेक्स द आंसर करेक्ट. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बैलेंस इट. तो इस टाइप की इक्वेशंस हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, बट अगेन इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग दैट हिट एंड ट्रायल मेथड, तो यू कैन योरसेल्फ सी कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट. तो पार्शियल इक्वेशन स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गुड विथ योर इक्वेशंस एंड प्रैक्टिस, तो हो सकता है इट्स श्योर दैट यू विल बी प्रो एट इट. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसे कि मुझे भी यहाँ पर हो गया था, राइट, 8H2O के केस में. तो व्हाई इज इट? बिकॉज हमको सबसे पहले तो ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करने का, एंड नेक्स्ट है हमें ना बार बार कॉपी करना पड़ रहा है ना इक्वेशन, तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है दैट 2 का हम लोग 4 ना कर दे, 4 का हम लोग 3 ना कर दे, अदरवाइज सारी इक्वेशन वापस से मिक्स हो जाएगी. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू अबाउट द स्पेशल क्लासेस at Unacademy. तो यहाँ ना these are the free classes. First of all, you can learn from your educators, you can engage with your educators via polls, and even we have doubt session. तो आपके जो भी doubts है ना, you can clear it in the classes. So if you want to visit the special classes, आप लोग देख सकते हैं the links which are provided to you in the description box. You can go and you can visit the links. अभी बात आती है why to subscribe for Unacademy, या फिर क्यों करने का है subscribe. तो first thing is you can learn from the comfort of your home. Okay, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सारे कोर्सेज का. देन सारे टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया यू आर गेटिंग एट वन प्लेटफॉर्म. अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल क्लासेस हमारे पास जो रेगुलर है डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है और आंसर राइटिंग सेशंस होता है, सो दैट you can understand that how to write the answers and how to be pro at it. Your syllabus is covered exhaustively. You get all the study material in the PDF format, and you get all the practice tests, live test series, batch courses, etc. Apart from these things, you are also going to get daily practice section, mock tests, live quizzes and whatnot. तो अभी इसको कैसे क्या करना है? You can take any subscription plan of Unacademy. You can go for 3 month, 24 month, 36, 48, whatever, and then you can use my code. This is my code RITIKACLIVE. तो ये जो कोड है ये आपको देगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एंड यू कैन गो फॉर योर सब्सक्रिप्शन. ओके, तो चलिए यहाँ तक. आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग, एंड अभी हम लोग मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज P4 plus HNO3. It is giving H3PO4 plus NO2. Okay, I'll just write it again. P4 plus HNO3. It is giving us H3PO4 plus NO2 plus H2. Okay, again चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? To break the equation into small parts. अभी जो नाइट्रिक एसिड है ये किस में ब्रेक होगा? Of course it is going to break in this and this. Okay, तो इसी तरह से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. ये मिल रहा है ना? तो let me write it over here. It is HNO3. It is giving us NO2 plus H2O.
तो सबसे पहले नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन जो है बैलेंस नहीं है, ऐड 2 ओवर हियर। अभी नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, इसको भी 2 से बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन कितना है, 2 इंटू 3 6 यहाँ पर, और यहाँ कितना है 2 इंटू 2 4 एंड 5। तो एक नेसेंट ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप दैट यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज डन। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन थिंग। इक्वेशन नंबर 2 जो हम लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें P4, तो P4 जो है ये अकेला तो क्या ही बैलेंस कर देगा अब इसे, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को वापस ले लेंगे। वापस ले लिया, दैट इज HNO3। अब यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या लिखे, फर्स्ट वाला तो ऑफ कोर्स लिखना है, सेकेंड वाला भी लिखना है ना, बिकॉज नाइट्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे। अब H2O की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स है, ये जो रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स है, उनसे बैलेंस हो सकते हैं, सो वी डू नॉट नीड H2O ओवर हियर। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन है हमारी P4 plus HNO3, it is giving us H3PO4 plus NO2। ये हो गई हमारी इक्वेशन। ओके, चलिए लेट्स ट्राई टू बैलेंस इट। फॉस्फोरस एक ही जगह से बैलेंस हो सकता है, इट इज P4, तो यहाँ पर वी विल ऐड 4। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉस्फोरस बैलेंस। अब बात करेंगे हम लोग नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अभी तक तो बैलेंस्ड ही है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे तब नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे, 4 इंटू 3 12, और यहाँ पर हमारे पास एक ही तरफ है हाइड्रोजन, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड 12 हियर, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 12 हियर। ओके, अब नाइट्रोजन हो गया डिस्टर्ब, तो यहां कर दिया 12। अब लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 12 इंटू 3 36, ओके, और यहाँ कितना है, 4 इंटू 4 16 प्लस 24। ओके, तो यहाँ 16 प्लस 24 हो गया, और यहाँ हमारे पास 36 है, तो ये कितना है हमारे पास 44 साइड कम है प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की साइड, तो यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन कर दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 को क्या करने का है, वी जस्ट हैव टू ऐड इट, मल्टीप्लाई इट बाय 4। तो ये हमारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, 8HNO3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, आई जस्ट रिमूव द अननेसेसरी थिंग्स। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 8HNO3, एंड व्हाट इज इट गिविंग, इट इज गिविंग, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कितना था 1, तो 4 हो जाएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा, तो 4H2O प्लस 4 नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इस साइड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, इस साइड प्रोडक्ट में कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा आंसर में, इट विल बी P4 प्लस HNO3। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सो इट विल बी 20HNO3, और ये मिलाकर what are they providing us, it is 4H3PO4 plus 8NO2 plus 4H2। ओके, तो ये हमारी सॉरी आई एम सॉरी ये हमारा जो है 8NO2 नहीं होकर के इट इज गोइंग टू बी 20। वाई, बिकॉज यहाँ पर भी है हमारे पास, तो 20NO। ये हो गई हमारी इक्वेशन। देख लेते हैं एक बार, फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 20। यहाँ पर देखो 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया 20। नाइट्रोजन 20 है, यहाँ डायरेक्ट 20 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 60 है, तो यहाँ हमारे पास कितना है 20 इंटू 2 40, तो यही हो गया, प्लस हमारे पास ये कितना है 4 प्लस 4 इंटू 4 60, तो ये हो गया 20 प्लस
40, 60. तो yes, everything is balanced over here. Okay. तो यहाँ तक आई डोंट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग दैट यू हैवंट अंडरस्टूड या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया और कंफ्यूजन हो. फिर भी अगर कंफ्यूजन है यू कैन लेट मी नो. अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज मोर और लेस स्टूडेंट्स बस हम लोग सेम चीज ही कर रहे हैं ना. हम लोग बस यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से या किस एलिमेंट को किधर ऐड करना है. ओके, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस इक्वेशंस. ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस. Okay, so this is providing us with K2SO4, MnSO4, CO2 and H2. थोड़ी बड़ी भी इक्वेशन. तो ये चीजें हमें जो है मिल रही है by the reaction of potassium permanganate, sulfuric acid, oxalic acid, and what are we getting? We are getting these things: potassium sulfate, manganese sulfate, carbon dioxide and water. अभी देखो अगेन सेम थिंग, इक्वेशन को ब्रेक करना है. तो लेट्स ब्रेक इट. फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? इट इज KMnSO4. ये जो है हमें क्या क्या दे सकता है? इट कैन गिव K2SO4, MnSO4 एंड H2. इससे है ना, क्योंकि सल्फर है नहीं तो H2SO4 भी ऐड करना पड़ेगा. सो इट इज गिविंग अस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, सॉरी, प्लस H2O. ओके, अब देखो पोटेशियम कितना है? 1 और यहाँ पर हमारे पास है 2. एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से. मैंगनीज 2 है, यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सल्फर यहाँ 2 है, यहाँ हमारे पास कितना है? सॉरी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी अभी तो 3 है, तो ये तो बैलेंस्ड है. अभी बाकी चीजें जब हम बैलेंस करेंगे तब हो सकता है इधर उधर गड़बड़ हो जाए. हाइड्रोजन की बात करेंगे. हाइड्रोजन कितना है? हियर इट इज 2. यहाँ हमारे पास भी 2 है. अभी तो वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन ओनली. ओके, just a minute. It is KMnSO4 plus H2SO4 and K2SO4. yes, तो यहाँ तक तो अभी तक सारी चीजें बैलेंस्ड है. अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन कितना है? 2 into 4 8, 9, 10, 11, 12. 12 ऑक्सीजन इधर है और इधर कितना है? 4, 8 एंड सॉरी 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. 13 हमारे पास ऑक्सीजन है. लेकिन ये जो है हमारी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले है. वाई? बिकॉज दिस इक्वेशन राइट नाउ इट इज नॉट बैलेंस्ड. भी देख लेते हैं कहां पर बैलेंस नहीं है. ओके, आई विल राइट इट प्रॉपर्ली अगेन. It is providing us with K2SO4 plus MnSO4 plus H2O. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था? बैलेंस पोटेशियम कर लिया था. यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है. मैंगनीज हम लोगों ने इस तरह से कर लिया था. ओके, और उसके बाद हम लोगों ने क्या बैलेंस किया था? इफ आई टॉक अबाउट सल्फर, सल्फर हमारे पास यहाँ पर है 1 एंड 2, 3. ये हमारा 3 सल्फर है और यहाँ पर हमारे पास कितना है? वी आर हैविंग 1, 2 एंड 3 सल्फर ओवर हियर अगेन. अब बात आती है हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन भी हमारे पास यहाँ पर बैलेंस है एंड यहाँ पर भी हमारे पास बैलेंस है. तो आई गेस ओवर हियर इट इज बैलेंस्ड. चलिए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, लोग एक बार वापस से करके देखते हैं. It is KMnSO4 plus H2SO4 plus H2C2O4. It is giving us K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 plus H2O. Okay.
अब हम लोग इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे. सो आई गेस पिछली वाली ट्रायल में हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे थे, दैट इज वाई इट वाज नॉट गोइंग वेल. KMnSO4 plus H2SO4, they are providing us with potassium sulfate plus manganese sulfate plus water. ओके, और हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन रही है? The second equation that we are having is oxalic acid, that is H2C2O4, और ये of course क्या देगा? ये हमें CO2 देगा एंड H2O देगा. ओके, अभी सबसे पहले इसको अगर हम बैलेंस करें तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 and 2 है, कार्बन हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, एंड ओवर हियर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 4 है, एंड यहाँ पर हमारे पास कितना है? 3. तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे एक नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, तो यहाँ तक आई होप दैट दिस इज क्लियर. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2. लास्ट वाली इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पोटेशियम की. तो पोटेशियम यहाँ पर हमारे पास कितना है? 2. तो हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2. मैंगनीज इसकी वजह से हो गया हमारे पास कितना? 2. तो अगेन वी विल मल्टीप्लाई हियर विथ 2. ठीक है, मैंगनीज भी हमारे पास जो है बैलेंस हो गया. अभी हम लोग बात करेंगे सल्फर की. तो सल्फर हमारे पास कितना है? 1 एंड 2, 3 ओवर हियर, एंड यहाँ पर भी हमारे पास 1, 2 एंड 3. अभी हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी विल ऑक्सीजन की बात करेंगे अगर हम सबसे पहले, तो ऑक्सीजन कितना है? 2 into 4 8 and 9 10 11 12, और यहाँ पर हमारे पास कितना है? 4 8 and 1. So what are we going to do? We are going to add the oxygens here, but before oxygen what we have to do? We have to go for the hydrogen thing. Okay, तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं with 3, just a second, तो अभी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 into 4 12 plus 2 into 4 8, 20 ऑक्सीजन हमारे पास इधर हो गया. ओके, अब इधर कितना है? वी आर हैविंग 4, ओके, एंड 4 and 8 12 एंड प्लस 1. नहीं, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पर पहले तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. यस, हाँ, तो 30 नहीं, अब हो जाएगा 15. 15 के लिए हम लोगों को कितना? 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करना है. ओके, तो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1. अभी यहाँ पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी अगेन हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 5. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? वी आर गेटिंग 5 into 2, that is 10 KMnO4 plus 3 into again 5 15. अच्छा, चलो इस इक्वेशन को ही हम लोग लिख लेते हैं. ओके, सो द इक्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ पर 5 है हमारे पास एंड यहाँ पर हमारे पास 1 है. ओके, विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5. आई एम सॉरी. यस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 2 KMnSO4 plus 3 H2SO4. It gives K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 3 H2O, और वहां पर हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन था एंड यहाँ 1 था, जिसकी वजह से वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 5. सो व्हाट आवर सेकेंड इक्वेशन विल बी 5 into oxalic acid C2H2O4 प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 10 CO2 प्लस H2O कितना हो जाएगा? अगेन 5 H2O, और नेसेंट ऑक्सीजन दोनों तरफ से कट जाएगा. यहाँ पर था हमारे पास, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और टोटल जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? 2 KMnSO4, नो इट वाज MnO4 plus 3 H2SO4 plus 5 H2C2O4. It is giving us K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 10 CO2 plus 8 H2.
ओके तो ये हमारी जो है पूरी इक्वेशन हो जाएगी एंड लेट्स सी इफ इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो ये हमारा जो है लेट्स ट्राई टू सी 2 पोटेशियम, मैंगनीज 2 मैंगनीज, सल्फर हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास 2 and 1 3। ओके अब बात आती है कार्बन कितना है 5 into 2 10, हमारे पास 10 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है 5 into 2 10 plus 3 into 2 16 और हमारे पास 8 into 2 16 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स बाकी सारी चीजें तो ऑक्सीजन भी बैलेंस ही होगा। 2 into 4 8, 3 into 4 12, तो ये हो गया 20 प्लस 5 into 4 20 40, ये हो गया हमारा 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 into 4 8 20 और 10 into 2 20, तो ये हो गया 40। Okay, so everything is balanced and I hope you might have understood the whole thing. How did we do it? Okay, basically nascent oxidation का बहुत काम है and then next thing is कि किस तरह से हम लोग क्या चीज ऐड कर सकते हैं, for example H2SO4 या फिर H2O. Okay, it all depends on how are you breaking that particular equation. Okay, still if you have any problem you can please get back to me. And next thing is community. तो community is just like a group of educators. तो आप किसी भी और या फिर सारे एजुकेटर्स की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट रेगुलर अपडेट्स, टू गेट योर सेशन नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक विथ योर एजुकेटर्स। Next is Bugs Bounty. तो Bugs Bounty जो है it is the opportunity for all of you learners. If you see any inappropriate content in the video, you can report that issue and you can claim your prize. Okay. So I hope that this session was informative. It was important, and you might have cleared all your doubts regarding the partial equation. Do let me know how was the session in the feedbacks, and if you have still not subscribed to the channel, kindly go subscribe it, like, share this video to the students, and we'll be meeting in the next class. Till then students, keep learning, keep studying. All the very best. Thank you.